दक्षिण बंगाल में पहली बार ट्रांसजेंडर सौंदर्य प्रतियोगिता न्यू सीजन चेंज ड्रीम बुधवार को रात 9:30 बजे दुर्गापुर के सिटी सेंटर के सृजनी थिएटर में आयोजित की गई। रैंप पर लिंग भेद मिटाए। दक्षिण बंगाल में पहली बार ट्रांसजेंडर सौंदर्य प्रतियोगिता ट्रांससेक्सुअल के साथ दुर्गापुर में आयोजित की गई थी। कोलकाता और मुर्शिदाबाद इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 15 ट्रांसजेंडर महिलाओं ने भाग लिया। शो का शीर्षक अदर सीजन न्यू सीजन चेंज ड्रीम है। इस कार्यक्रम में नगरपालिका प्रशासक बोर्ड की अध्यक्ष अनिंदिता मुखर्जी और आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कवि दत्ता और अलबीबा संगठन के नेता अर्पिता सेनगुप्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। 2 বছর ধরে আলবিবার সাথে বর্তমান স্বপ্নেলের একটা প্ল্যানিং কি একটা নতুন একটা বিউটি ব্রাইড প্রেজেন্ট যেটা আমাদের এই দক্ষিণবঙ্গে মানে আপার এই সাইডটাতে একদম প্রথম হবে। এরকম কাজ কেউ কখনো দেখেনি। তো এই প্ল্যানিংটা 2 বছর ধরে হয়েছিল এবং আমাদের ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটিকে তাদের বিউটি ব্রাইড এবং ট্যালেন্টের শোয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা সমাজের কাছে যে চিরাচরিত একটা ছবি বা ধারণা তৈরি হয়ে রয়েছে সেটাকে ভাঙার জন্যই এই প্রয়াস আলবিবার সাথে বর্ধমান স্বপ্নেলের। কতজন এসেছেন আজকে টোটাল 15 জন পার্টিসিপেন্ট এটাতে রয়েছে। বলছি এই এত সুন্দর মেকআপ, এত সুন্দর সাজিয়ে, এত সুন্দর পোশাকে যে আপনারা আজকে এখানে পার্টিসিপেট করছেন, অনুভূতিটা কীরকম অনুভূতি আপনাদের হচ্ছে? সেই অনুভূতিটা অনেক অনেক সময় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তো একটা খুব সুন্দর, খুব ভালো ছোঁয়া লাগার একটা অনুভূতি, যেই অনুভূতিটা হয়তো এই মুহূর্তে বলে প্রকাশ করতে পারবো না, কিন্তু এতদিন যেরকম আমরা দেখে এসেছি কি হ্যাঁ সামনে কোনো মেয়ে বা কোনো মডেলকে বা কোনো র্যাম্প শো যারা করে বিভিন্ন আজকে মানে আমার মতে আমার যেটা মনে হচ্ছে একটা মানে হিস্ট্রি ক্রিয়েট হওয়ার ব্যাপার, বিকজ ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা ফার্স্ট টাইম যেটা ট্রান্সজেন্ডারদেরকে এতজন ট্রান্সজেন্ডারদেরকে নিয়ে অনলি মানে শুধু ফ্যাশন শো নয়, সেটা কিন্তু এদের এখানে বিউটি প্যাজেন্ট, মানে এদের মধ্যেই কেউ একজন ফার্স্ট, কেউ একজন সেকেন্ড, কেউ একজন থার্ড হবেন, মানে প্রত্যেকটা মানে এদের কমিউনিটির মধ্যে আজকে এই যে ইউনিটি তাদের মধ্যেই কিন্তু আজকে ফাইট হবে কি যে তাদের মধ্যে কারা বেস্ট। এটা হচ্ছে আজকে আমার মোটো, যে যারা এতদিন আমরা ভেবে এসেছি যে ট্রান্সজেন্ডার মিন্স হচ্ছে তালি ঢোল বা তাদের বাধাই, কিন্তু তাদের মধ্যে এত রকমের ট্যালেন্ট এবং আপনারা প্রত্যেকে দেখতে পাবেন যখন তাদের ট্যালেন্ট শো বা তাদের যখন ক্রিয়েটিভিটি, তখন আপনারা বুঝতে পারবেন এবং আপনাদের মধ্যে যেটা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যেটা চিন্তা ছিল কি যে তাদের একটা অন্যরকম আমরা ভাবি, বাট তারা কিন্তু তাদেরকে একটা নতুন রূপে নিয়ে আসছে। তাই জন্য আমাদের এই কনসেপ্টের নাম অন্যরূপ। কতজন? 20 জন ক্যান্ডিডেট। 20 জন কোথা থেকে এসছে? পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছে, মানে আমাদের এসছে আপনার শিলিগুড়ি, মালদা, তারপরে হচ্ছে আপনার বর্ধমান, সুন্দরবন, নানা দিক থেকে তারা এসেছে এখানে। এদেরকে নিয়ে যে করবেন প্রোগ্রামটা কি কেন মাথায় ঢুকলো, কেন করলেন? আচ্ছা, এটা যদি আপনি বলেন এটা অনেকদিন আগেকার মাথায় চিন্তা, মানে আমার সাথে কিছু ট্রান্সের প্রথম অন্য একটা অনুষ্ঠানে প্রথম তাদের সাথে দেখা হয়। প্রথমটা আপনাদের সকলের মতন আমারও মনে হচ্ছিল তারা একটু অন্যরকম, বাট তাদের সাথে মিশতে বুঝতে পারলাম যে তারা যে কি তাদের এই সত্তাটা বা তারা কি ধরনের মানুষ সেটা যখন বুঝলাম তখন তাদেরকে খুব আপন করতে ইচ্ছে করলো। সে আপন করার থেকে যখন মনের মধ্যে আসলো সেই সময় একটা চিন্তা করলাম যে আমি কিভাবে ওদেরকে সকলের সামনে আনতে পারি। আজ আমার আলবিবা কোম্পানি আজকে এরকম নানা ধরনের বিউটি প্যাজেন্ট করে থাকে, তখন চিন্তা করলাম আমি আমার প্ল্যাটফর্মকে দিয়ে তাদেরকে সামনে নিয়ে আসি। এটা কি জেলায় প্রথমবার হচ্ছে? জেলায় এটা প্রথমবার। আমাদের রাজ্যে কি হয়েছে? রাজ্যে হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে নিয়ে কিন্তু বিউটি প্যাজেন্ট হয়নি, শুধু কিন্তু আপনাদের ফ্যাশন শো হয়েছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत की ओर से बहुला फुटबॉल मैदान में द्वारे सरकार शिविर आयोजित की गई। शिविर में 22 तरह के स्टॉल लगाई गई हैं। शिविर में लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वप्न महिला मल्टीपर्पज को ऑपरेटिव सोसाइटी, यूको बैंक का खाता खोलने, द्वारे राशन और CICDS को बच्चों को पुष्टिकारक भोजन कम खर्च में कैसे मिल सके, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। साथ ही शिविर के बीच में सुझाव पेटी भी रखी गई थी ताकि लोग अपना सुझाव भी दे सके।
शिविर में ब्लॉक फूड इंस्पेक्टर शांतनु हल्दर, पंचायत अधिकारी प्रदीप रजक, बहुला ग्राम पंचायत प्रधान सुहागिन टूटू, बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम मिर्धा, पंचायत सदस्य धर्मेंद्र पासवान, रेणु तूरी, धीरज साव, संदीप सरकार तथा समस्त पंचायत सदस्यगण और नेतागण मौजूद रहकर शिविर में अपना योगदान दिए। इस अवसर पर बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से, सरकार के माध्यम से लोगों के बीच में रहना। जो लोग का काम है कि ना हम कुछ करना नहीं है, सिर्फ आलोचना करना, तो आलोचना कर दीजिए। हम लोग सरकार के साथ में हैं, सरकार के साथ में लोग यहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा किस चीज़ में जमा हो रहा है फॉर्म? सबसे ज़्यादा किस डिपार्टमेंट में? क्या बोले सर? सबसे अधिक किसी डिपार्टमेंट में जमा हो रहा है फॉर्म आपका? देखिए सब काउंटर पे ही लोगों का आना जाना है, सब काउंटर पे ही लोग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग का जानते हैं बहुला ग्राम पंचायत में हम लोग के यहाँ पर ST/SC परिवार का संख्या ज़्यादा है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो अनुपात है वो ज़्यादा है। और मान लीजिए जिसका स्वास्थ्य साथी कार्ड है, लेकिन ऐसे हम देख रहे हैं कि सभी काउंटर पे लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और यहाँ पे लोग जो हम लोग के सरकार के जो लोग हैं, हम लोग के पंचायत के जो लोग हैं, लोगों को यहाँ पर हम लोग काम करने का सुविधा दे रहे हैं। प्रेसिडेंट अवार्ड दे रहा हम लोग को। हमारा नाम वीर बहादुर सिंह, इंटायर बहुला ग्राम पंचायत का टीम मिल के कैंप हम सफल कर रहे हैं। हम प्रधान यहाँ बहुला ग्राम पंचायत के, साथ में मेरे ग्राम पंचायत के संचालक साहब उत्तम मिर्धा जी हैं, मेंबर साहब हम लोग धर्मेंद्र पासवान जी हैं। सभी लोग मिल के सहयोगिता से कैंप को हम सफल कर रहे हैं। हेलो कैंप लगाने का उद्देश्य क्या है? ये जो आज कैंप लगा है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा यही ICDS का है कि हम लोग जो अपना ICDS में कम खर्च में अपने बच्चों को कैसे पौष्टिक आहार दे, ताकि वो उसका शरीर स्वस्थ अच्छा रहे, उसका हाइट बढ़े, वेट बढ़े। और जैसे मान लो को भी है कि मतलब मौसम के हिसाब जो फल सब्जी हम लोग को मार्केट मिलता है, वो कैसे उसको खा के अपने आप को सही रखें और अपने बच्चों को भी सही रखें। ये क्या प्रत्येक कैंप में आप लोग करते हैं? जी सर, हम लोग प्रत्येक में करते हैं द्वारा सरकार में। यहाँ क्या इसको भी आप लोग बेच रहे हैं या सिर्फ पब्लिक को दिखा रहे हैं? हम लोग पब्लिक को बेच नहीं रहे, हम लोग पब्लिक को दिखा मोटिवेट कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से इसको कम खर्च में कैसे अपने आप को भी, अपने बच्चे को भी, हर चीज़ में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। लोग कहाँ तक सुन रहे हैं इस बात को? यहाँ पे सुन रहे हैं, जैसे कि जो यहाँ पे जो आते हैं वो सभी सुन रहे हैं और कर भी रहे हैं। क्या बोलिएगा इसको लेकर के शिल्पांचल वासियों को क्या संदेश जाता है? संदेश में यही जाता है कि जरूरी नहीं है कि हम महंगा सामान ही अपने बच्चों को खिलाएं, हम कम खर्च में अपने बच्चों को सही सलामत और अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं, ताकि वो बीमार मुक्त रहे। आपका नाम? सावित्री मंडल। कहाँ से? यही बोला से। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। RPF पोस्ट बांकुड़ा के द्वारा यात्री का ट्रेन में छुटा हुआ लैपटॉप बैग लौटाया। RPF पोस्ट बांकुड़ा के अनुसार बुधवार को सहायक उप निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह के साथ मेरी सहेली टीम महिला प्रधान आरक्षी कुमकुम मुखर्जी RPF पोस्ट बांकुड़ा स्टेशन चेकिंग में तैनात थी। ड्यूटी के दौरान गाड़ी संख्या 18013 बांकुड़ा के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आई और गाड़ी अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। उसके कुछ देर पश्चात सुमन चैटर्जी मोतीलाल सेन लेन नकलडंगा कोलकाता के निवासी ने बताया कि उनका लैपटॉप बैग उक्त गाड़ी के S9 कोच में सीट नंबर 5-6 पर छूट गया है। सूचना मिलने के पश्चात तत्काल इंद्रविल स्टेशन में तैनात प्रधान आरक्षी JP कापरी RPF पोस्ट बांकुड़ा के दूरभाष द्वारा इस संबंध में जानकारी दिया गया कि उक्त गाड़ी के इंद्रविल स्टेशन पहुंचने के बाद प्रधान आरक्षी द्वारा वो लैपटॉप बैग बरामद किया गया एवं RPF पोस्ट बांकुड़ा में लाया गया। बैग में एक HP कंपनी का लैपटॉप, 3 चार्जर, वाटर हीटर, सेल्फी स्टिक एवं अन्य सामान मौजूद था।
यात्री के आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा आने और कागजी कार्रवाई करने के पश्चात उनका लैपटॉप, बैग, सामान सहित सही सलामत सुपुर्द किया गया। उन्होंने अपना सामान सही सलामत वापस मिलने के लिए रेलवे सुरक्षा बल बांकुड़ा को धन्यवाद दिया। से बांकुड़ा आया था तो मेरा बैग बांकुड़ा स्टेशन में ट्रेन में छूट गया था, तो मैं तुरंत बांकुड़ा आरपीएफ को उसके बारे में इन्फॉर्म किए थे। बांकुड़ा आरपीएफ मेरा टोटल सामान सही तरह से रिकवरी करके मुझे हैंडओवर कर दिया है, इसलिए बांकुड़ा आरपीएफ को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। रानीगंज सिटीजन्स फोरम की तरफ से लंबे समय से रानीगंज को सब डिवीजन बनाए जाने की मांग पर आंदोलन किया जा रहा है। आज रानीगंज सिटीजन्स फोरम की तरफ से रानीगंज बोरो कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने से पहले रानीगंज बोरो कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने एक बार फिर से अपनी इस मांग को प्रशासन के सामने पेश किया। इस मौके पर रानीगंज सिटीजन्स फोरम के तमाम कार्यकर्ता और सदस्य यहां पर उपस्थित थे। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। রানীগঞ্জ মহকুমার পুনরুদ্ধারের দাবি সমর্থনে রানীগঞ্জ বড়টুয়ের কার্যালয়ের ঠিক সামনে চলছে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্না, যেখানে আমরা এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি ঠিক বড় অফিসের ঠিক সামনে। আমি আমার প্রতিনিধিকে দেখাতে বলবো যে ঠিক রানীগঞ্জ বড় অফিসের রানীগঞ্জ কর্পোরেশনের আসানসোল কর্পোরেশনের অন্তর্গত বড়টুয়ের সামনে চলছে শান্তিপূর্ণ ধর্না সমাবেশ। সিটিজন অফ ফোরাম এবং রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের যৌথ উদ্যোগে, তাছাড়া রয়েছে রানীগঞ্জের স্বনামধন্য কিছু সংস্থা, যেগুলি হচ্ছে রানীগঞ্জ গুরুদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটি, আঞ্জুমান ইমদাদি বাহিনী, ক্লথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, রানীগঞ্জ জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন, বিভিন্ন সংস্থাগুলি রয়েছে এবং এই শান্তিপূর্ণ ধর্ম সমাবেশে রয়েছে। 1847 সালে মোটামুটি মানে 1847 সালে 19 শতকে 19th সেঞ্চুরিতে মানে মহকুমা ছিল এই রানীগঞ্জ। 1906 পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় 60 বছর মানুষ এখানে দাবি করছেন যে রানীগঞ্জের উন্নয়নের ধারা থমকে গেছে, আমরা চাই রানীগঞ্জের ডেভেলপমেন্ট। সেই বিষয় নিয়ে আজকে চলছে শান্তিপূর্ণ ধর্না। আপনারা আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আপনারা দেখছেন সেই দৃশ্য। আসুন আমরা কথা বলে নিই রানীগঞ্জ সিটিজন অফ ফোরামের যিনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট গৌতম ঘটক মহাশয় আমাদের আর কি বলছে। এবং আজ 28শে ডিসেম্বর এবং আগামী 18ই জানুয়ারি ডিএম অফিসে ঠিক এইভাবেই মানে শান্তিপূর্ণ ধর্ণা সমাবেশ হতে চলেছে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। हम लोग आज जिस मुद्दे पे यहाँ आपके सामने, हम रानीगंज वासियों को अपनी डिमांड बनाने के लिए कहीं ना कहीं रोड पे खड़ा होना पड़ता है। इसी श्रृंखला में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज सिटीजन फोरम एवं कई NGO ने আজকে কোনো ব্যবস্থা নেই। আজকে রানীগঞ্জে আপনারা দেখুন, যেদিনকে রানীগঞ্জকে আসানসোল পৌর নিগমের সঙ্গে যোগ করে দিল, সেদিনকেই কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম যে রানীগঞ্জের কিছু উন্নতি হবে, কিন্তু আমরা কোনো রানীগঞ্জের কোনো रानीगंज को समृद्ध बनाने के लिए ये इस वक्त का बहुत ही अहम जरूरत है। और हम लोग चाहते हैं कि ये जब डिस्ट्रिक्ट नया बन गया है, जिसमें रानीगंज को सबडिविजन करना चाहिए। কিছু বক্তব্য রাখছি, এটা কিছুক্ষণ আগে গৌতমবাবু বললেন যে রানীগঞ্জ শহরের ব্যবসা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।
আজকে রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরামে রানীগঞ্জকে সাবডিভিশন বা মহকুমা করতে হবে এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে। কেন করতে হবে? আপনারা দেখেছেন সকাল 8টার সময় এই মোড়ে দাঁড়াবেন, নিজের মেয়ে সাইকেলে করে আসছে রানীগঞ্জে, কিসের জন্য? একটা দিন মজুরি ইনকামের জন্য। सिटीजन फोरम ऑफ रानीगंज जो मेमोरेंडम दिए हैं वो उनका जो डिमांड है रानीगंज शहर को सब डिवीज़न बनाना। इस डिमांड के साथ मैं भी हूँ और हमारे जितने लोग हैं सभी हैं कि रानीगंज को सब डिवीज़न बनना चाहिए, ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन ये मांग करने का जो तरीका मुझे लगता है सिटीजन फोरम सीपीएम के हाथों व्यवहार हो जा रही है, ये गलत है। ये मांग पॉलिटिकल क्योंकि वामपंथी जो सिटीजन फॉर्म का जो कर्णधार हैं, पहले लाइन में जो खड़े हैं, वो लोग वामपंथी से ताल्लुक़ रखते हैं, वामपंथी के साथ रहने वाले, वामपंथी के बड़े बड़े लीडर, यहाँ तक कि इस बोरो ऑफिस जो कभी म्यूनसिपलिटी हुआ करती थी, इस म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन तक हैं। और डिमांड है आप करते हैं कि सब डिवीज़न रानीगंज को बनाना है, लेकिन यहाँ धरना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सौभाग्यवान हैं कि हम लोगों ने ममता बनर्जी जैसे, दीदी ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री पाए हैं, और दीदी ममता बनर्जी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो जान और पश्चिम बंगाल वो जानती हैं कब कहाँ सब डिवीज़न बनाना है, वो जानती हैं। उनके पास आप ये लोग सीधे जा सकते हैं, लेकिन इन्हें राजनीति करने की ज़रूरत है। हमने वक्तव्य में सुना कि रानीगंज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, अब इन्हें डेवलपमेंट ही नज़र नहीं आते। कौन लोगों को डेवलपमेंट नज़र नहीं आते हैं? जो चेयर में रहते हुए जिनके पास जो कलम था, कलम रहते हुए भी वो कलम का इस्तेमाल नहीं किए, चेयर का इस्तेमाल नहीं किए। 1947 से रानीगंज सब डिवीज़न के लिए हम लोग पहले से सोच रखे हैं, इसका प्रोसेस चल रहा है। उसी काम को उसको जानते हुए उन लोग ये सब काम कर रहे हैं। जिस तरह पहले हमारा पश्चिम बर्धमान जिला था, उसको 2 भाग हुआ, एक पश्चिम बर्धमान, एक 34 साल हुकूमत किया बंगाल में, और अभी जो आए हुए हैं सिटीजन फोरम में जो हमारे एक्स चेयरमैन उसमें हैं गौतम बाबू जी, वो तो अपना सरकार से डिमांड नहीं किए कि रानीगंज को सब डिवीज़न होना चाहिए। क्यों नहीं किए? वो भी तो सरकार में थे, चेयरमैन थे रानीगंज के म्यूनसिपलिटी के, क्यों ने अपने सरकार से आवाज़ उठाया और डिमांड किया? हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसी को लोग आज सब आदमी को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ और भी कई संस्था को लेके ये डिमांड हमारा डिमांड है, और हमारे डिमांड को हमारे सामने आके धरना दे के आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या लगता है सीनियर सिटीजन फोरम पॉलिटिकल? अब देखिए पॉलिटिकल है ना, देखिए आप वो लोग आए, जितने सारे लोग आए, चैम्बर का आए, सिटीजन फोरम जो चेयरमैन थे वो आए, जो यहाँ का सीपीएम का चेयरमैन थे गौतम बाबू, वो आए हमारे पास? नहीं आए। वो लोग खेला खेल रहे हैं, इन लोगों को सामने रखकर पॉलिटिकल पीछे से खेला खेल रहे हैं, कंधा में रख के बंदूक चला रहे हैं, इसे कहा जाता है। सब सारा मिजाज खिला है। इन लोग को जो आए हैं कि आप लोग जाइए बात कीजिए, हम लोग बाहर रहते हैं, বাইরে থাকছি ভাষা ঠিক আছে। দেখুন রানীগঞ্জ মহকুমার দাবিটা যে সামনে এসছে, এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্টটা ভাগ করার পর আমাদের জেলাকে যখন এই দাবিটা গোটা রানীগঞ্জবাসীর ছিল, রানীগঞ্জ থেকে দাবিটা উঠেছিল যে বর্ধমান জেলাকে দুভাগ করা অন্তত। এবং এই যখন জেলাটাকে ভাগ করে দিল এবং অ্যাক্সিডেন্টলি এটা ভাগ করার পর আমরা দেখলাম তার আগেই আমাদের কর্পোরেশনটা, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিটা চলে গেল, কর্পোরেশনের সঙ্গে মিলে গেল। আমরা সিটিজেন্স ফোরাম রানীগঞ্জের সব মানুষ এর বিরোধিতা করেছিলাম, এবং বিরোধিতা করার পর আমরা ঢুকতে পারলাম না। প্রশাসন ডেটে রইল যে না আমরা এটাকে কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করব, এবং এটা যখন যুক্ত হয়ে গেল রানীগঞ্জে মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেল যে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি চলে যাওয়ার পর আমাদের কী ধরনের অসুবিধা হচ্ছে। একটা বিল্ডিং প্ল্যানের জন্য আসানসোল যেতে হয়, ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আসানসোল যেতে হয়, কোনো কিছু করতে গেলে আসানসোল যেতে হয়। রানীগঞ্জে মানুষ হয়রান হয়ে গেছে, এবং এরপর থেকেই রানীগঞ্জে মানুষের মনে এলো যে রানীগঞ্জটাকে সাব ডিভিশন করা উচিত। राजनीति चल रहा सीपीएम का রাজনৈতিক ব্যাপার চলছে যেটা সিটিজেন ফোরামকে
এখন ব্যাপার শুনুন, এটা সিটিজেন্স ফোরামের দাবি একার নয়। সিটিজেন্স ফোরামে রানীগঞ্জে যত এনজিও আছে, এবার চেম্বার অফ কমার্স থেকে, ক্লথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে, এবং আমরা জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন থেকে, এবং রানীগঞ্জের যে বড় বড় ক্লাবগুলো, লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাব, IMA, সবাই প্রতিনিধিরা ছিলেন। এটা গোটা রানীগঞ্জবাসীর দাবি। এখন রানীগঞ্জবাসীর দাবিটা যদি পলিটিক্স হয়, তাহলে আমার কিছু বলার নেই, ঠিক আছে? তা আমি ওই কথাটা আবারও বলছি আপনাকে, যে যখন CPM-এর আমল ছিল, সেই সময় কিন্তু এই যে রানীগঞ্জকে জেলা হিসেবে ভাগ করো, আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট করা হোক, এটা কিন্তু 85-86 সাল থেকে উঠেছে। সেই সময় করা যায়নি, কারণ রাজ্য সরকার, বললাম তো এটা পলিটিক্যাল ডিসিশন, রাজ্য সরকারের পলিটিক্যাল ডিসিশন ছিল না। পরবর্তীকালে তৃণমূল গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল ডিসিশন হয়েছে এটা ভাগ করে দাও, ঠিক আছে? এবং আমরা গোটা দেশে কি দেখলাম, যে রাজ্যগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, ছোটো ছোটো করে দেওয়া হচ্ছে, জেলাগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে সাব ডিভিশনটা ভাগ হবে না কেন? এর মধ্যে তো রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। সাব डिवीजन भाग ले उन्नति बढ़े। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। राष्ट्रीय कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर दुर्गापुर डिवीजन के कांग्रेस सेवा दल और पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस द्वारा दुर्गापुर के काशीराम दास स्थित कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं सूत्रधार के रूप में प्रदेश कांग्रेस नेता तरुण रॉय उपस्थित थे। तरुण रॉय ने पार्टी का झंडा फहराकर एवं शहीद बेदी पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुभ शुरुआत की। अपने भाषण में तरुण रॉय ने 138वें साल पुराने कांग्रेस के आत्म बलिदान और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भारत के विस्तारवादी और सांप्रदायिक ताकतों से बचा सकती है। भाजपा ने दौरा किया और कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थकों को पार्टी फंड में दान करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में तरुण रॉय ने दुर्गापुर के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों जरूरतमंद गरीब लोगों को कंबल वितरण किए। इस कार्यक्रम में तरुण रॉय के साथ दुर्गापुर डिवीजन कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अमल हल्दर, पूर्णेंदु पांडा, संगीता घोष, कांग्रेस के राजू घोष उपस्थित थे। संगीता घोष, युवा कांग्रेस की राजू घोष उपस्थित थे और अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता समर्थकगण भी। 138तम जन्मदिन आगे আমরা সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তহবিল সংগ্রহের জন্য আমরা 18 থেকে 28 আমরা শিবির এখানেই আমাদের पंडित नेहरू नामांकित हमारे दलीय कार्यालय আমরা আজকে তা সম্পন্ন করব এবং পশ্চিম বর্ধমানে একটা বড় সংখ্যক জাতীয় কংগ্রেসের তহবিলে তা দেওয়া হবে অনলাইনের মাধ্যমে। আর আজকে 28শে ডিসেম্বর, আজ থেকে 138 বছর সেই দিন কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস তার জন্ম এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সেই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা, এই ছিল স্বপ্ন। আর আজকে 2023-এ দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধী ভারতবর্ষকে এক করার জন্য ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেছিলেন। আবার মণিপুর থেকে মুম্বাই তিনি ন্যায় যাত্রা শুরু করেছেন। আজকে প্রতিষ্ঠা দিবসে সংকল্প নিতে হবে যে ভারতবর্ষের যে ফ্যাসিস্ট সরকার, ভারতবর্ষের গণতন্ত্র হত্যাকারী সরকার, তার বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে এককাট্টা করে মল্লিকার্জুন খাড়গে, राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी नेतृत्व। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। मरवाड़ी युवा मंच और श्री श्री सीताराम जी मंदिर द्वारा आज बांकुड़ा के गांव राजबांध में जाकर वहां के जरूरतमंद लोगों के बीच में एकत्रित किए गए पुराने कपड़ों का वितरण किया गया। साथ में वहां के छोटे बच्चों को फल, बिस्किट, केक, चिप्स इत्यादि का वितरण भी किया गया। बढ़ती ठंड को देखते हुए वहां के लोगों के बीच में 100 कंबल का भी वितरण किया गया। ये कार्य मंदिर एवं मंच द्वारा गत 4 वर्षों से किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में हर वर्ष दीपावली के आसपास पुराने कपड़ों को एकत्रित किया जाता है और उन्हें जाकर जरूरतमंद गांव में उसका वितरण किया जाता है। उसके तहत इस बार राजबांध गांव का चुनाव किया गया। इस सेवामूलक कार्य में सम्मिलित थे बिमल बाजोरिया, राजेश जिंदल, आयुष सराय, आयुष झुंझुनवाला, सत्यनारायण अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, पंकज जालान इत्यादि। से और राजबांध तक का सफर जो आप लोग किए हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि ना गांव में जाकर जो सीताराम मंदिर में जो कपड़े इकट्ठे हुए हैं तो जाकर गांव में बांटें। उससे हम लोग जो गरीब बच्चे लोग हैं उन लोग को कम से कम ये सम्मान मिले। मैंने रानीगंज से इतनी दूर आकर यही गांव का चुनाव क्यों किया आप लोग ने? कारण कि पास में तो बहुत से आदमी लोग जाकर दे देते हैं, लेकिन इतना दूर जाकर अपनी इंटरिए गांव में जाकर देना बहुत ही असंभव रहता है। तो हम लोग सोचे कि चलो मरवाड़ी युवा मंच के क्रू और सीताराम जी मंदिर के मिलकर हम लोग एक शुभ काम करें। कितने वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारी समझ से 4 साल से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आज जैसा कि प्रत्येक कई वर्षों से सीताराम जी मंदिर और मारवाड़ी युवा मंच मिलकर पुराने कपड़े नए कपड़े का सारी हम लोग श्री सीताराम जी मंदिर में मंगवाते हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि रानीगंज वासियों ने सभी ने मिलकर भरपूर मात्रा में अपने कपड़े वहाँ भेजे हैं श्री सीताराम जी मंदिर में। और ये प्रकल्प 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से उन्होंने इतनी सारी सामग्री, इतनी सारे कपड़े, कंबल हैं, रजाई है, आपके जो बच्चों के कपड़े हैं, बड़े को कपड़े हैं, जैकेट है, जीन्स पैंट है, नई कपड़े जो जिन दुकानदारों ने दिए हैं उनका हम लोग बहुत आभारी हैं कि प्रत्येक वर्ष वो भेजते रहते हैं। और वो कपड़े हम यहाँ गांव बस्ती में जहाँ जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, हम वहाँ उनके यहाँ आकर वितरित करते हैं। ये हमारा सब समय सहयोग श्री सीताराम जी मंदिर के साथ रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय सीताराम जी मंदिर के हैं और ये सब समय हमारे साथ रहते हैं ऐसे कार्यों के लिए कि जो गरीब बस्तियों में गरीब बच्चे रहते हैं, जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, ये सब समय हम लोग इनके साथ हैं। और आज हम लोग इस गांव में आकर कंबल हम लोग अपनी तरफ से, सदस्यों की तरफ से, और हमारे जो एक बहुत समाज सेवी सदस्य हैं श्री हेमंत जी किसान, उनकी तरफ से दिया गया है। खाने के लिए इनके लिए मिठाई, फल, बिस्कुट, ये सारी सामग्री हम रानीगंज शहर से लेके आए हैं जो इनके द्वारा वितरित करेंगे। ये प्रकल्प हमारा हर वर्ष रहता है और आगे भी रहता है, चलता रहेगा। धन्यवाद राजेश भैया। सत्यनारायण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। नमस्कार জানাচ্ছি আমাদের এই গ্রামে আসার জন্য সবাইকে। बस ये बच्चों की आवाज़ है, ये पुकार रहे हैं, ये आशा के साथ हम यहाँ आते हैं। आप देख रहे हैं हमारे सदस्य आयुष जी झुंझुनवाला, आयुष जी सराया, पंकज जी जालान। अब गांव की थोड़ी सी मैं सीन दिखाता हूँ आप लोगों को। भाजपा की तरफ से आज आसनसोल नगर निगम का घेराव किया गया। आसनसोल नगर निगम में सभी भाजपा पार्षद, भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी तथा पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी इस मौके पर यहां उपस्थित थे। नगर निगम कार्यालय के गेट के सामने एक मंच बनाया गया था, जहां पर उपस्थित भाजपा नेताओं ने आसनसोल नगर निगम के पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जनता को नागरिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सभी 106 वार्डों में नगर निगम द्वारा दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन आसनसोल नगर निगम के टीएमसी पदाधिकारियों का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। इसी के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया गया और नगर निगम का घेराव किया गया। इसके बाद मेयर को ज्ञापन सौंपने की बात थी, लेकिन मेयर विधान उपाध्याय अनुपस्थित थे। इस पर आसनसोल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चैतन्य तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मेयर राम का नाम सुनकर भाग खड़े हुए हैं। वहीं इस बारे में आसनसोल नगर निगम के एमएमआई से सुब्रत अधिकारी ने कहा कि भाजपा द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि 106 वार्ड में विकास का कार्य नहीं हो रहा है, वह पूरी तरह से निराधार है। आसनसोल नगर निगम हमेशा लोगों के विकास के लिए और नगर निगम के विकास के लिए प्रयास कर रहा है। 106 নম্বর ওয়ার্ড থেকে 106টা ওয়ার্ড থেকে সমানে আসছিল কমপ্লেনের পর কমপ্লেন, না রাস্তাঘাট সাফাই, না কোনো রকম ড্রেনেজের সমস্যা, না কোনো রকম জলের সমস্যা, এমনকি শীতকালে পর্যন্ত জল পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ আমরা ওনাকে ঘুম ভাঙাতে এসেছিলাম, কিন্তু কি করে জানবো যে উনি রামের নামে ভয় পেয়ে উনি পালিয়ে যাবেন।
ওনার নাকি বুকে ব্যথা উঠে গেছিলো রামের নাম শুনে, তাই উনি পালিয়ে গেলেন। তো আজ আমরা ট্রেলার করতে এসেছিলাম যে না, যদি উনি এই রকমভাবে যে আমাদের আসানসোলকে বঞ্চনা করা হচ্ছে, এই বঞ্চনার হাত থেকে যদি আসানসোলবাসীকে উনি উদ্ধার না করতে পারেন, তাহলে তো আমরা পিকচার করতে বাধ্যই থাকবো। যখন আমরা পিকচার করতে আসব, তখন তো আর আমরা এখান থেকে উঠবো না। আমরা এখানে সব রকম ভাবে ব্যবস্থা করেই যাব, যাতে আমাদের 106টা जीतेगा आसनसोल, हारेगा तृणमूल। जीतবে आसनसोल, हारবে तृणमूल। आसनसोल মানে বিজেপি, বিজেপি মানে আসানসোল। আসানসোল মানে বিজেপি, বিজেপি মানে আসানসোল। জিতবে আসানসোল, জিতবে বিজেপি, হারবে তৃণমূল। একটা স্লোগান। आज কর্মসূচি ছিল যে 22 দফা দাবি নিয়ে আসানসোল কর্পোরেশনের ডেপুটেশন দেওয়া, কিন্তু মেয়র পালিয়েছে, ও পালিয়ে গেছে। পালিয়ে কতদিন থাকবে? আজ হাজার হাজার মানুষ, প্রায় 20,000 মানুষ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসানসোল কর্পোরেশনের সামনে এসেছিলেন। মেয়র ভয়ে পালিয়ে গেছে, কিন্তু মেয়রকে দিদিও বেশি দিন লুকিয়ে রাখতে পারবে না, জনসমক্ষে আসতেই হবে। কারণ আসানসোল পৌর নিগম আসানসোলের মানুষকে পরিষেবা দিতে পারছে না, তার দায় তাদেরকে স্বীকার করতে হবে। মেয়র পালিয়ে গেছে, রামের নামে ভয় পেয়েছে। রাম নাম শুনলে ভূতেরা পালিয়ে যায়, ও তো ভূত নয়, ও কেন পালালো জানি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। भाजपा द्वारा आज आसनसोल नगर निगम का घेराव किया गया था। 22 सूत्री मांगों पर नगर निगम के विकास संबंधी कार्य को लेकर रानीगंज के विभिन्न वार्डों से 10 बसों में बीजेपी समर्थकगण पहुंचे थे। सनातनी सेना की ओर से बसों का इंतजाम किया गया था, जहां भारी संख्या में समर्थकों नगर निगम पहुंचे थे। सनातनी सेना के आसनसोल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी राहुल घोष के नेतृत्व में समर्थकों को नगर निगम लाया गया था। आज के 90 नंबर वार्ड भारतीय जनता पार्टी आसनसोल कॉर्पोरेशन বিরোধী দল নেত্রী চৈতালি তেওয়ারির নেতৃত্বে আমরা আসানসোল কর্পোরেশন ঘেরাও করছি এবং আসানসোলবাসীদের যে বিভিন্ন রকম সমস্যা, যেমন রাস্তাঘাট, বেরোজগারি এবং আরও বিভিন্ন রকম আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে যেগুলো সমস্যাগুলো আছে, সেগুলোর জন্য সমস্ত ভারী সংখ্যাতে আমরা আসানসোল কর্পোরেশন ঘেরাও করবো আজকে। বিশেষ আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট বাপ্পা চ্যাটার্জি এবং আমাদের রানীগঞ্জ মণ্ডল প্রেসিডেন্ট দেবজিৎ খাঁ, চৈতালি তেওয়ারি বিরোধী দল নেত্রী এবং বিভিন্ন নেত্রীরা থাকে। আচ্ছা, রানীগঞ্জ শহরতলি থেকে মানে কটি বাস ছাড়া হচ্ছে? রানীগঞ্জ শহর থেকে এখন পর্যন্ত আমার নলেজ যেটা আছে যে 10খানা বাস ছাড়া হচ্ছে। আপনার নাম এবং পরিচয় বলুন। আমার নাম রাহুল ঘোষ, আমি আসানসোল ডিস্ट्रिक्ट सेक्रेटरी सनातनी सेना। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से चेंबर भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। चेंबर के सदस्यों ने रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार, मेंटर तथा पूर्व अध्यक्ष दिवंगत राजकुमार कयाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर चेंबर के सदस्यों ने राजकुमार कयाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहरवासी चेंबर के सदस्यगण, विभिन्न NGO के सदस्यगण, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यगण, रानीगंज सिटीजन्स फोरम के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय राजकुमार कयाल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस मौके पर समाज सेवी आरपी खैतान ने कहा कि जब चेंबर ऑफ कॉमर्स के कई सदस्यों ने साथ छोड़ दिया था, ऐसे कठिन समय में भी उन्होंने कभी चेंबर ऑफ कॉमर्स का साथ नहीं छोड़ा। जीवन के अंतिम समय तक समाज के प्रति समर्पित होकर समाज के लिए कार्य किया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज केसरी ने कहा कि राजकुमार कयाल का जाना इस चेंबर के लिए निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान है। उन्होंने बताया कि राजकुमार कयाल ने हमेशा व्यक्ति से ऊपर संस्था को स्थान दिया है। अध्यक्ष अरुण भारती ने कहा कि जीवन नश्वर है, ऐसे में जीवन को सत्य को मानना होगा, लेकिन उनके जाने के बाद उनके आदेशों पर चलन ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो एक सच्चे समाज सेवी थे, जो कि कई सामाजिक कार्यकर्ता थे और कई संस्थाओं से जुड़े भी थे। इस अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान, चेयरमैन प्रदीप बाजोरी एवं स्वर्गीय राजकुमार कयाल के परिजन उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में मुख्य योगदान दिया। और पापा के लिए तो मैं क्या बोलूँ, मुझे अपने योद्ध उपाध्याय की कोई चंद लाइनें याद आती है तो सोचती कि ये वो जब आसमान से गिरती है तो वो उसे ये नहीं पता रहता है कि वो कहाँ गिरने वाली मिलेगी या किसी मंदिर पे गिरेगी। पर मेरे लिए मैं अपने बारे में ये कह सकती हूँ अपने पापा के लिए कि एक शिप का मुंह खुला था और मैं जाकर उस शिप में जाके समा गई और मैं मोती बन गई। जी हाँ, वो शिप मेरे पिता जी थे जिन्होंने मुझे मोती बनाया और हम सब भाइयों को, ये मेरे लिए नहीं, मेरे सब भाइयों बहनों के लिए, सबके लिए चरितार्थ होती है कि हम सब एक एक मोती के रूप में एक पूरी माला बनकर उनका परिवार उसने नहीं छोड़ा। यहाँ जो बैठे जनमानस हैं, इस बात को गौर कर ले, कई ऐसे महानुभाव यहाँ हुए हैं जिन्होंने विपत्ति के समय रानीगंज चेंबर का साथ छोड़ दिया था। दूसरा दल, तीसरा दल, चौथा दल, मैं सब बातें यहाँ डिटेल में, क्लिंचिंग लॉयल्टी टू रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड टू हिज मेंटर लेट। रानीगंज समाज के लिए एक शोक की शाम है जब हम ताऊ जी राजकुमार जी कयाल को अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। प्रदीप भैया ने कहा कि अगर रानीगंज चेंबर के टॉप 5 पिलर्स के रूप में अगर किसी को देखे तो वो उनमें से एक थे। मैं तो यह कहूँगा कि सबसे मजबूत पिलर ही वही थे। सबसे पुराने दादाजी के समय के, आज के समय अगर कोई सबसे पुराना साथी था और जो उस समय से पहले दिन से करीब वो शायद 72-73 के आसपास चेंबर से जुड़े थे और आज तक अनवरत चेंबर के प्रति जो उन्हें दर्द था, जो स्नेह था। সামাজিক উন্নয়নের যে বিষয়টা, এই বিষয়টার কথা সবার কিন্তু ভাবনা চিন্তার মধ্যে থাকবে, যেটা রাজকুমার কয়ালজি অন্তত আমাকে ফোন করে এই কথাই বারবার বলেছেন এবং সেটাকেই আমি আবার রিপিট করছি এবং তার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, আমি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি তার পরিবার। हम लोग हमेशा अनुरोध करते थे कि आप हम लोग के साथ रहिए, आपका होना ही हम लोग के लिए काफ़ी है। ठीक उसी तरह एग्री मार्केटिंग में भी उनका अहम भूमिका रहता था। हम लोग उनको लेकर कोई भी काम करते तो उनसे परामर्श अवश्य करते थे। जैसा कि रोहित ने भी कहा, उनकी स्मरण शक्ति हम लोग सब कायल थे। उनको याददाश्त इतना उनका मतलब तीव्र था कि पिछले 20 साल पहले क्या हुआ, किस दिन हुआ, क्या सब मतलब मुखर कंठस्थ बोल देते हैं, इसमें कहीं पर वो अपनी बात निडरता से रखते थे और समाज के सभी संस्थाओं में उनका बहुत योगदान था। हम लोग भारत विकास परिषद चलाते हैं। अभी पिछले साल ही उनको मैं चीफ गेस्ट बनाकर, हम लोग प्रत्येक महीना विवेकानंद सेवा केंद्र में दवाई वितरण करते हैं, उनको चीफ गेस्ट बना के ले गया था। वो इतने प्रसन्न हुए प्रोग्राम में कि उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया कि बेटा पिताजी की तरह इस तरह काम करते रहो, तुम लोग काम कर रहे हो। तो और संस्थाओं में वो सक्रिय उनकी भागीदारी थी। आज रानीगंज का सारा व्यवसायी समाज हो चाहे सामाजिक समाज हो, सभी उनकी कमी को महसूस कर रहा है और आने वाले दिन में बहुत जोर से कमी महसूस करेगा। जो बीज रोपण हुआ था, मैं तो ये कहूँगा बीज रोपण में उनका योगदान था और आज जो ये वृक्ष दिख रहा है, अभी तक उन्होंने इसको सींचा है। यदि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 1 से लेकर 5 कोई मजबूत पिलर इस चैम्बर के थे,
जो अभी तक चैम्बर को संवारने का काम किया जिन्होंने किया, उसमें राजकुमार जी क्याल का नाम टॉप 5 में जरूर लिया जाएगा। और हमेशा वो एक्टिव रहते थे चैम्बर के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक मीटिंग में। पिछले 1 साल तक वो मीटिंग में आ रहे थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।